Today we are taking the topic transverse wave of electromagnetic wave, transverse nature of electromagnetic wave. कि एक वेव जो है EM वेव वो कौन से नेचर की होती है, ट्रांसवर्स नेचर की होती है। ट्रांसवर्स नेचर की होती है, इसको प्रूव करने का मतलब we have to prove if the direction of propagation of wave is along x axis, then there is no component of electric as well as magnetic field acting along x direction. Because we know the transverse nature, electrical and magnetic field vectors vibrate perpendicular to the direction of propagation of wave. So what is the perpendicular direction? This plane, that is xz plane, and the xy plane, this plane, if they are acting on them. So only thing we have to prove the transverse nature of electromagnetic wave is that there is no electric field, resultant electric field along the x direction if we take it along a paralleloid of length dx. Okay. So for that we will use Gauss theorem. What was Gauss theorem stating? Gauss theorem ये बोलता था cyclic integral of E dot ds, that is the net electric field multiplied by the total area which we are considering is equals to charge times 1 upon epsilon naught. Okay, charge multiplied by 1 upon epsilon naught. Okay, now we are taking a paralleloid over here, over which is A B C D E F G H. There is no charge enclosed inside this paralleloid, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो the charge if inside it is 0, let us consider this to be our Gaussian surface. The charge inside it is 0, therefore cyclic integral of E dot ds will also be 0. Now what is this cyclic integral of E dot ds? It is made up of three pairs of oppositely parallel surfaces. What are those? A B C D E F G H. These are the two pairs. Secondly, one from the top and other from the bottom. A D H E B C G F. Those are the two. And two from the other surfaces, that is A B F E and D C G H. If we combiningly take these two, okay, and the total surface area would be comprised. Let us write it down in the sequential manner. Or in place of it, we can write down. Or what are the two pairs? Let us write it down. Integral A B C D, that face, okay, E times ds. In place of ds I can write down what can I write down in place of ds? A B C D वाले फेस का ds क्या है, सरफेस एरिया क्या है, dy multiplied by dz, यही होगा। तो in place of ds for this surface integral A B C D I can write down dy dz, plus integral of the opposite face E F G H E times. Acha, what is the electric field we are considering in this direction? Ex. So let us write down Ex over here and Ex dash over here in the opposite face. The electric field in the direction if we are considering there is something, that be Ex dash. Okay, and that surface area is again what? dy dz. यही है कि नहीं है यहाँ पर मुझे, ठीक है। Close this bracket plus integral. Let us take other two pairs, one on the top and another on the bottom. Okay, integral EA dh. E, suppose in that direction it is EY, नीचे की डायरेक्शन में EY है सपोज, तो उसका इंटीग्रल कितना हो जाएगा, dx dz हो जाएगा। तो dx dz प्लस इंटीग्रल ऊपर वाला फेस f b c g d e y डैश। अच्छा, इसको अगर आप इसको पॉजिटिव मानते हैं, देखो हमेशा पॉजिटिव एक्स वाई एक्सिस ये वाला हो तो नीचे वाला नेगेटिव हो जाएगा, तो इसको क्या बोल देंगे, ई वाई, और इसके नीचे वाले को क्या बोल देंगे, ई वाई डैश। ठीक है, तो इसको ले लो, नीचे वाला फेस जो है इसको बाद में लेंगे, ऊपर वाला यहाँ पर लिख लो, दैट इज एफ बी सी जी, और नीचे वाला यहाँ पर सेकंड वाले को लिखना ए डी एच ई वाई डैश टाइम्स डी एक्स डी जेड। ये भी समझ आ गया, तो प्लस करके थर्ड वाला भी आ जाएगा, कौन सा वाले, इधर वाला और पीछे वाला। तो इस साइड वाले को पॉजिटिव मानेंगे, पीछे वाले को नेगेटिव। ठीक है,
तो इंटीग्रल कौन सा वाला हो जाएगा, ई ए बी एफ ई जेड टाइम्स कितना, dx dy प्लस इंटीग्रल ई जेड डैश पीछे वाला एच डी सी जी dx dz, ठीक है। ये पूरा इक्वल टू क्या है, 0, ठीक है। Yes, so continuing, pick up a single slot. These are the collection of it. तो अगर हम बोले, if you pick up a pair which we have highlighted over there, that is the net electric field across. मुझे ये पता करना है कि electric field across this direction. तो क्या होना चाहिए, A B C D और E F G H. इसमें से net electric field की वैल्यू कितनी है ये पता करना है. तो that will be this one, ठीक है। नीचे लिखना स्टेटमेंट में the paired integrals are contributing, paired integrals मतलब ये जो हम लोग ये वैल्यू, paired integrals are contributing from the normal faces and since E capital E क्या, electric field, since E does not depend on y and z, E electric field does not depend on y and z axis, they cancel out in pairs, ये वाले को लिखेंगे सीधा, इंटीग्रल a b c d dx dy dz प्लस इंटीग्रल e f dh ex dash dy dz इक्वल्स 0, यही होगा, इक्वल्स 0। इंटीग्रल कर ही दिए हैं, टोटल एरिया अगर हम लिख ही रहे हैं वहां पर, ठीक है, तो लेट्स रिमूव दिस इंटीग्रल। तो ex टाइम dy dz और ex टाइम dz dy, ये क्या होगा, टोटल एरिया तो हम ले ही लिए, ठीक है। तो ex dy dz प्लस dy dz इज इक्वल्स टू, मैं इसको ex टाइम्स dy dz ये बोल सकता हूं, ठीक है। ये इंटीग्रल जो है, यहां पर एक काम करो, इसको इंटीग्रल a b c d कर लो इज इक्वल्स टू इतना, क्योंकि मेरा x डायरेक्शन में पॉजिटिव है तो इसको मैं पॉजिटिव लूंगा, ठीक है। अब सिमिलरली देखो कुछ नहीं किया, बस इंटीग्रल को डाल, क्योंकि हमने एरिया लिख चुके हैं, ठीक है। टोटल एरिया, इंटीग्रल किसके लिए होता है, एरिया, टोटल एरिया तो वी आर ऑलरेडी पुटिंग इट ओवर। तो वहां पर सिमिलरली इंटीग्रल e f g h इक्वल्स सॉरी इंटीग्रल e x डैश dy dz इक्वल्स कितना होगा। अब जब इधर डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉजिटिव माने तो पीछे वाला कैसा हो जाएगा भाई, नेगेटिव हो जाएगा, तो इक्वल्स कितना हो जाएगा, माइनस ex dy dz, ये जो e डैश क्या हो गया, नेगेटिव, ठीक है। उसको वहां पर कर देते हैं, देखिए कितना हो जाएगा भाई, इसको एक इक्वेशन ले लो, है ना, फ्रॉम 1 कर दो तो कितना आएगा भाई, ये दोनों को पुट कर देंगे, ex, अच्छा इसको डैश ही लेना, ठीक है, इसको डैश ही लेना, ex dy dz इक्वल्स टू माइनस ex डैश dy dz। टोटल एरिया दोनों साइड का कॉमन है, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, ex इक्वल्स टू माइनस ऑफ ex डैश इक्वल्स टू माइनस ऑफ ex डैश, ठीक है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ex प्लस ex डैश इक्वल्स कितना है, 0, ये बोल सकते हैं हम, बोल सकते हैं कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है, पढ़ो इसको, ex मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड एट ए डिस्टेंस dx फ्रॉम द ओरिजिन इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन, इसी फेस पर। तो यहां से लेके यहां तक जाने में कोई भी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंक्रीज नहीं हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर है ही नहीं, वो कितना हो रहा है, 0। सिंस तो इसके लिए स्टेटमेंट डालना, द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग
the component of electric field along the direction of propagation is a constant. ये इक्वेशन यहाँ पर लिखे ना, वहाँ पर दिस इम्प्लाइज लिख देना, बहुत सिंपल बना देना. दिस इम्प्लाइज is a constant, is a constant, but a constant or direction of propagation, but a constant or direction of propagation, sorry, but a constant or static field, but a constant or static field मतलब यूनिफॉर्म फील्ड बोल सकते हैं. एग्जिस्ट करती है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड कभी कांस्टेंट हो सकती है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है तो डिक्रीज ही होगा. एक पॉइंट से cannot produce this constant, cannot produce a wave, cannot produce a wave, but a constant or static field cannot produce a wave. Who produces a wave? Who produces a wave? कौन प्रोड्यूस करता था? Who was capable of producing electromagnetic wave? कौन प्रोड्यूस करता था? हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में क्या लिखे थे? चार्ज पार्टिकल. कैसा चार्ज पार्टिकल? एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल. एग्जैक्टली, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल. उसके बिना कोई नहीं प्रोड्यूस कर सकता. चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कौन करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड. यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है बोल दिया. तो क्या इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल फील्ड है? नहीं है, तभी तो वेव प्रोपेगेट हो रहा है. ठीक है, तो कांस्टेंट या स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड वेव बना नहीं सकता. तो वही स्टेटमेंट को हम कंप्लीट करते हैं. cannot produce a wave, so this constant must be equal to 0. So this constant must be equal to 0. That is x will also equal to x will also be equal to 0. Similarly, it can be proved करके कर देना. Similarly, Vx भी 0 प्रूव कर सकते हैं. सेम कंसेप्ट में. इससे एम्पियर सर्क्यूटल लॉ है कि नहीं? एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ v डॉट dl इक्वल्स mu नॉट टाइम्स I. तो जैसा हम ये गॉस थ्योरम की तरफ से इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 प्रूव किया, उसी तरह से एम्पियर सर्क्यूटल लॉ को यूज करके मैग्नेटिक फील्ड भी 0 प्रूव कर सकते हैं. नॉट रिक्वायर्ड ओवर देयर. बस उसके नीचे हमारा नीचे में हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव स्टेटमेंट लिख देना है. Inverted comma में छोड़ दे. An electromagnetic wave, in an electromagnetic wave, and in an EMW. अब electromagnetic wave को दिया EMW लिखना शुरू करो. Both the electric and magnetic fields are perpendicular in an EMW. Both the electric and magnetic fields are perpendicular to direction of propagation. That is, an EMW is of transverse nature. That is, an EMW is of transverse nature. Okay, so next topic, electromagnetic spectrum. हमको विजिबल स्पेक्ट्रम पता है, जिसको हम विप्योर बोलते थे. VIBGYOR, वायलेट से लेके रेड. ये विजिबल स्पेक्ट्रम हमने देखा था. द विजिबल स्पेक्ट्रम वाज ऑब्टेन्ड व्हेन द व्हाइट लाइट वाज deviated through a refracting medium and all these components were deviated by different values on leaving the medium. Example, a prism. ठीक है, so this was called as the spectrum and basically called as visible spectrum, which is visible to our eyes. The complete range of all the electromagnetic waves set in the sequential order of their increasing frequency or decreasing wavelength or vice versa, that arrangement is called as electromagnetic spectrum. Now what are the electromagnetic spectrum components that we need to learn, okay, and memorize their range of frequency, range of wavelength and their practical application. First of all, we will write down the definition for electromagnetic spectrum. Spectrum किसको बोलते हैं? Write down. The orderly distribution of electromagnetic waves, orderly, ORDERLY,
the orderly distribution of electromagnetic waves in accordance with their wavelength in accordance with their wavelength or frequency or frequency or frequency into distinct separate distinct groups having differing properties widely differing properties differing separate अलग अलग properties is called electromagnetic spectrum. We'll draw the diagram related to it. तो भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के डिस्टिंक्ट सेगमेंट्स क्या क्या है वो हम नाम लिख देते हैं. सबसे पहले होता है उसमें हम लार्जर वेवलेंथ से चालू कर रहे हैं, रेडियो वेव्स. ठीक है, सबसे पहले कौन सा होता है? रेडियो वेव्स. लार्जेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी. ठीक है, सॉरी, हाँ, शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी. वी कैन से लार्जेस्ट वेवलेंथ एंड स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी. सेकंड होता है, इनका सीक्वेंशियल हम नाम लिखते जाएंगे, प्रॉपर्टीज भी पढ़ना है. नेक्स्ट होता है माइक्रोवेव्स. माइक्रोवेव्स. थर्ड होता है इंफ्रारेड वेव्स. इंफ्रारेड वेव्स. फोर्थ भी माइक्रोवेव्स. नाम है बेसिकली, इनका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जा रहा बढ़ते जा रहा है. अच्छा, इसके बाद विजिबल लाइट आएगा. सॉरी, नॉट माइक्रो, देयर वुड बी विजिबल वेव, है ना. विजिबल लाइट. विजिबल लाइट. लाइट भी क्या है? वेव ही तो है. Radio waves, microwaves, infrared waves and visible light. Next being ultraviolet light, UV light. शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी वाला. ठीक है, यूवी के बाद आता है एक्स रेस. और लास्ट 7th में आता है गामा रेस. गामा रेस. ठीक है, द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच वी नीड टू नो. रेंज ऑफ वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड ऑल. तो अभी करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ हम जरा लिख लेते हैं इसका. ठीक है, वन बाय वन. रेडियो वेव्स का लिखना वेवलेंथ ग्रेटर देन 0.1 मीटर. इसका लैम्डा जो होता है ग्रेटर देन 0.1 मीटर होता है. काफी बड़ा है, देख लो. वेव्स माइक्रोस्कोपिक लेवल पर 0.1 मीटर के आसपास का भी कोई चीज अगर वेव है, काफी बड़ा वेव है. क्योंकि अगर आगे हम देखते जाएंगे कितने छोटे वेवलेंथ होते हैं. नेक्स्ट लिखो 0.121 mm. लैम्डा है 0.1 मीटर से लेकर के 1 मिलीमीटर तक होता है. ये भी काफी बड़ा है. इसके बाद आता है इंफ्रारेड में 1 मिलीमीटर से 700 नैनोमीटर. 1 मिलीमीटर टू 700 nm नैनोमीटर. नेक्स्ट 700 टू 400. 700 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर. यूवी का होता है 400 से 1 nm, छोटा होते जा रहा है. 400 टू 1 nm. एक्सरे का होता है 1 nm टू 10 का पावर -3. 1 nm टू 10 का पावर -3. और लास्ट गामा का होता है लेस देन 10 का पावर -3 nm. लैम्डा लेस देन 10 का पावर -3 nm. ठीक है, दिस इज द ऑर्डरली
सीक्वेंस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इन सब में भी सब डिवीजन थोड़े थोड़े आते हैं। अब अगर मेरे को करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ याद है तो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी भी याद होनी चाहिए, ठीक है, वो भी हम देखेंगे हम लोग।